Hello everyone, welcome again to my channel. कल की बात है. This is आशुतोष श्रीवास्तव and topic वही hypothesis चल रही है 17 के ऊपर and this is part 2 of the same content. और इसमें मैं मोदी जी से रिलेट करने की कोशिश करूँगा इस नंबर को and हमारे प्रधानमंत्री से रिलेट करने की कोशिश करूँगा और कुछ चीज़ें अपने बारे में बताऊँगा. ओके. So Narendra Modi ji was born on 17th September 1950. अच्छा, मैं इससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा. This is out of my observation. The people born on 2, 11, 20 और कोई भी नंबर ऐसे जिसका सम 2 होता है, वो लोग ऐसे नंबर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो कि 8 हो, 17 हो, 26 हो या ऐसा कोई नंबर जिसका सम हो के 8 हो. ये दो चीज़ों में चलता है नियम कि इफ़ अगर मंथ का डेट से बस काम नहीं चल रहा है तो देन वी यूज़ द मतलब नंबर ऑफ मंथ एज. ओके. सो 14 PM ऑफ इंडिया सिंस 26th May 2014. 2 + 6 = 8. ओके. CM ऑफ गुजरात 7/10/2001, 7/10/17 to 22nd of May 2014. ध्यान देने लायक बात जो मेरे को दिखी थी, जब ये 22 तारीख को अपना पद CM ऑफ गुजरात का छोड़ा था तो इनने जो शपथ ली थी PM ऑफ इंडिया की, वो 4 दिन बाद क्यों ली? अगले दिन भी तो ले सकते थे. वो 4 दिन का इंतज़ार क्यों किया? नेक्स्ट पॉइंट. ही हैड इंटरेस्ट इन थिएटर. ही वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, अ कीन डिबेटर. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद की लाइफ में भी 17 नंबर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. आई हैव रेड few books of Swami Vivekanand, so on the basis of that I can say this thing. ठीक है. He wants welfare of people. He hates Muslims and promotes Hindutva. He often does silly mistakes and मैं भी करता हूँ. मेरे को लगता है 17 नंबर से रिलेटेड लोग करते हैं. Next point. He has very efficiently accepted and used new technologies. He is promoting digital literacy. Next. He is described as energetic, arrogant and charismatic. He travels for work for making good terms with other nations. Next point. He lives at 7 Lok Kalyan Marg, Delhi. ठीक है. अब इनकी लाइफ के कुछ इवेंट्स की बात करना चाहूँगा. At age 17 he left home after rejecting his arranged marriage. In 1971 when he was 21, he became a full-time campaigner of RSS, Rashtriya Seva Sangh. He got arrested once in Delhi for taking part in some non-violent protest. At age 27, 1977, he wrote a book, Sangharsh Ma Gujarat in Struggles of Gujarat. मैं भी एक लेखक हूँ, by the way. I have also written a book, not just one, 2, by the way. At age 28, 1978, he graduated in BA Political Science. Then at age 32, in 1982, he graduated in MA in the same subject, Political Science, from Gujarat. At age 37, 1987, he became organizing secretary of BJP Gujarat under LK Advani, then president of BJP. At age 42, 1992, he left politics and thought to establish a school in Ahmedabad, also the year when I was born. 1994, at age 44, he rejoined. At age 48, May 1998, he became BJP General Secretary. At age 51, from the year 2001 to 2014, he became the CM of Gujarat. And at age 64, in 2014 till date, he is PM of India. Since Modi ji became PM of India, he has done a few things on such dates which either are 17, close to 17 or 11 or close to 11 or the sum of day plus month is equal to same as mentioned before. Next point. In September 2014, he introduced Make in India with a vision of making India a global manufacturing hub. On 2nd of August 2014, Modi ji launched Swachh Bharat Abhiyan
and luckily or knowingly or unknowingly it has got a picture of गांधी जी जिनके हाथ में एक झाड़ू है और वो कचरा अपना कचरा साफ कर रहे हैं। और इसके बाद एक मूवी भी बनी थी टॉयलेट, जो कि इसी पे आधारित थी, एंड इट वाज आल्सो पावर्ड बाय स्वच्छ भारत अभियान। इट वाज रिलीज्ड ऑन 11th of August 2017। 29 2 + 9 = 11, 1 + 1 = 2। 29th of September 2016 सर्जिकल स्ट्राइक at 8:15 PM 8/11/2016 को डीमोनेटाइजेशन आया। 500 और 1000 के नोटों को बैन कर दिया गया, एंड सून आफ्टर 500 and 2000 नोट्स के नए वेरिएशंस लॉन्च कर दिए गए थे और सर्कुलेशन में आ गए थे। ये बहुत 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 स्मार्ट मूव था। हैट्स ऑफ टू यू मोदी जी फॉर दिस एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट इसके लिए थोड़ा स्पेशल वाला। ऑन 1/7/2017 1 जुलाई 2017 को, वो डेट भी जिस दिन मेरी शादी हुई थी 1 जुलाई को, उन्होंने जीएसटी को एक्टिव किया। जीएसटी इट समड अप समवेयर अराउंड 17 डिफरेंट टैक्सेस इनटू वन। 26/2/2019 268 अटैक ऑन पाकिस्तान, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, बट इस वक्त मैं रिकॉल नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू मेंशन देम, एंड होपफुली आई विल मेक सम अदर वीडियो इन द फ्यूचर जिसमें उन पॉइंट्स को भी कवर करूँगा। नेक्स्ट अपने से रिलेटेड और अपनी बुक से रिलेटेड भी मैं कुछ पॉइंट्स को कवर करना चाहूँगा। मेरी जो सेकेंड बुक है आई शुडंट हैव डाइड लाइक दिस, उसमें मैंने इस नंबर का काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया है, और कहीं ना कहीं इस नंबर के वजह से ये बुक एक पैरानॉर्मल फैंटेसी की कैटेगरी में भी आ जाती है। ठीक है, मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहूँगा। मेरी मैक्सिमम क्लासेस में जो मेरा रोल नंबर रहा है दैट वो 17। जब मैं ग्रेजुएशन करने गया था व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय इंजीनियरिंग डिग्री, मेरा जो रोल नंबर था वो 0820CS101026 था। लास्ट का ये नंबर ही रोल नंबर कहलाता था। तो एग्जैक्टली वो 26, 2 + 6 = 8 अगेन। जो मैंने पहली जॉब की थी तो वो मैंने जो ज्वाइन की थी, जो मेरी ज्वाइनिंग डेट थी दैट वाज 17th of August 2015, और जो मेरे को लॉकर मिला था उसका जो नंबर था दैट वाज आल्सो 2366, एंड 2366 को भी मैं सम करता हूँ तो दैट आल्सो सम्स अप टू 17। जो मेरी पहली बुक लॉन्च हुई थी उसका टाइटल था आई कुड हैव हैड 17 बट आई चोज टू हैव 19 चैप्टर्स, और उसका ISBN के बारे में आपको बता दूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये यूनिक होता है, ये आपकी बुक की यूनिकनेस बताता है। एक ISBN नंबर से 2 बुक्स कभी नहीं हो सकती हैं। तो मेरी जो बुक पहली बुक जो लॉन्च हुई थी उसका जो ISBN नंबर था दैट वाज 97893520664421, और अगर इन सारे नंबर्स को मैं सम अप करता हूँ तो जो नंबर आता है दैट इज 62, एंड 6 + 2 करता हूँ तो अगेन 8 नंबर आता है। 17 में भी वही चीज़ होता। ठीक है, एंड माई सेकेंड बुक वॉज रिलीज्ड ऑन 11th of August on my birthday, on my 25th birthday with 171 pages, and इस टॉपिक के ऊपर 17 नंबर के ऊपर मैंने जो रिसर्च की थी वो उस जगह पे की थी जब मैं काम सबसे ज़्यादा कम करता हूँ, जब मैं घर पे था, और जो मेरा क्वार्टर नंबर रहा है जिसमें मैंने मैक्सिमम लाइफ का टाइम स्पेंड किया है दैट वाज 2nd C17, और अगर ध्यान दिया जाए 2nd C17 पे तो 3 नंबर निकल के आते हैं 2, 3 and 8, और ध्यान दिया जाए अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ पे विच इज़ 11/08/1992 तो वहाँ से भी 3 नंबर ही निकल के आते हैं, 2, 8 और 3। सो कुछ तो पंगा है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। मेरा नाम आशुतोष है। अगर इसको सही स्पेलिंग में देखा जाए तो हिंदी में लिखता हूँ तो आ में हलंत लगता है, और अगर इंग्लिश में अगर सही स्पेलिंग लिखूँ तो स्पेलिंग शुड बी AASHUTUSH, जो कि एक 9 लेटर वर्ड है, लेकिन मैं अननोइंगली जो भी है मैं एक 8 लेटर वर्ड ही यूज़ करता आया हूँ, दैट इज़ ASHUTUSH।
मेरी बुक में एक सब्जेक्ट है रक्षण, जिसके लाइफ में भी वो नंबर वैसे ही आता है 17 जैसे मेरे लाइफ में आता है, और उसके लाइफ में भी वो नंबर लकी या अनलकी नहीं था. इट वॉज जस्ट अ नंबर विच अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली. नेक्स्ट पॉइंट, 17 represents the action of evolution on the cosmos and its tendency to the karmic liberation. It also means somewhere a person who believes more on logics than on myths or magics, defining an atheist. और इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो कि मैंने अपनी मेन रिसर्च के बाद ऑब्जर्व किए. शादी एंगेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है लाइफ का. मेरी जो एंगेजमेंट हुई वो ऐसी डेट में हुई कि यस आपको बताऊंगा तो शायद आप लोग ईज़िली याद भी रख पाओगे. 29 फरवरी 2020 को मेरी एंगेजमेंट हुई थी, और अगर देखा जाए तो 2 + 9 = 11, 2, एंड ये नंबर 4 साल में एक बार आता, तो आई गेस इट वुड बी लाइक आप इजीली याद रख सकते हो. और अगर मैं साल को 2 हिस्से में डिवाइड करता हूँ तो 2 डेट्स निकल के आती हैं जो कि बताते हैं कि ये मध्यांतर है. तो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक और 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक. ऐसे अगर मैं 6-6 महीने में डिवाइड करता हूँ साल को तो डिवाइड होता. तो जो मेरी शादी हुई थी एग्जैक्टली द डेट वॉज 30th जून की रात में वरमाला डाली मैंने, और जो मंडप वगैरह के जो कार्यक्रम हैं वो 1 जुलाई को हुए. तो जो मध्यांतर होता है साल का, उस वक्त एग्जैक्टली मेरी शादी हुई. एंड मैं खुद को मैरिड रहा हूँ फ्रॉम 1 जुलाई 1/7/2020 से. और बाय द वे कि मेरी जो शादी की डेट डिसाइड हुई थी वो अलग डेट थी, एंड कोरोना काल आ गया था, तो दैट्स वाई मेरी शादी की डेट आगे बढ़ गई थी. एंड कहीं ना कहीं उसी नंबर पे आके अटकी जो कि मेरे जीवन में कहीं ना कहीं आ रहा था काफ़ी ज़्यादा. एज अ स्पिरिट जब हम ऊपर रहते हैं, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, नॉट अ रिलीजियस बट अ स्पिरिचुअल पर्सन. तो मैं स्पिरिट्स पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ. तो जब हम एक स्पिरिट होते हैं, जब हम जन्म लेने वाले होते हैं, तो हम लोग 3 डेट्स भी डिसाइड करते हैं जिस दिन हमारी मृत्यु होगी. ये हम लोग को कॉन्शियसली याद नहीं रहता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो चीज़ डाटा हमारे दिमाग में फीड है. और मैंने कहीं सुना है कि जिन लोगों की शुरुआत 2 पे होती है उनका अंत 8 पे होता है. मेरा जन्म जो है वो है DOB जो है मेरा 11/8/1992 है. जब मैं 4 साल का था, सो एग्जैक्टली ऑन 17th February 1996 यस, क्या हुआ था, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था. मेरा एक ऐसा फेटल एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कायदे से मेरे को मर जाना चाहिए था, बट आई सर्वाइव्ड. सो आई गेस दैट वाज माय फर्स्ट डेट. और वही वो एक्सीडेंट था कि जिसमें ऐसा इतना ज़्यादा ब्रूटल था कि जिसमें जितने भी लोग थे, एक एम्बेसडर गाड़ी थी, उसमें कुछ 7-8 लोग थे, और उसमें से बस मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर ही सर्वाइव कर पाए, बाकी कोई भी उसमें बच ही नहीं पाया. और कंडीशन ऐसी थी, मतलब आई वाज लाइक अ किड, एंड जो ग्लास विंडो पेंस होते हैं ना, उसके कांच मेरे, मतलब इफ़ यू कैन लुक, मेरे अभी भी स्ट्रेच मार्क्स हैं कुछ. तो ये पूरा कांच घुस गया था अंदर तक, और डॉक्टर ये कह रहे थे कि मेरे सेरिब्रम से तक कॉन्टैक्ट में था वो कांच. तो मतलब दैट वाज रियली अ केस के जहाँ पर कायदे से शायद मेरे को मर जाना चाहिए था, बट आई सर्वाइव्ड. लेकिन एक वो डेट तो थी जो शायद एज अ स्पिरिट मैं डिसाइड करके आया था. थ्योरी नहीं, हाइपोथेसिस है, प्रूव्ड नहीं है कि सही है कि गलत है. सो दैट्स व्हाई आई प्रेजेंट यू लाइक दिस इन द वे, इन द फॉर्म एज इट इज़. आई गेस बहुत सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं एंड बहुत कम चीज़ों को रिलेट कर पाया हूँ. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग, इस वीडियो को प्लीज़ बार बार देखें अगर आप वाकई में समझने चाहते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था. एंड हियर आई वुड लाइक टू साइन ऑफ. लव यू गाइस.